हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेल इन योर स्टडीज and planning something to do after this lockdown is over. So well, today we are going to start another topic of probability distributions. Till now we have studied the meaning of probability distributions, what are the probability distribution, what are their types, what are variables, what are the types of variables, what is discrete variable, what is continuous variable, and which kind of distributions falls under the category of discrete distribution and which kind of distribution falls under the category of Poisson distribution. In my previous videos I have told you about the first discrete probability distribution which is widely used, that is binomial distribution given by Professor Bernoulli, and in which there were two outcomes. Now my second discrete probability distribution which I am going to discuss today is Poisson distribution, which was given by Professor Simon D. Poisson, cleared from the name that why it was called Poisson distribution or why it is called Poisson distribution. The difference between binomial distribution and Poisson distribution is that whereas in binomial distribution we were having only two events, we were having only two outcomes, one of which was the success and another was considered as failure, and almost their probability was almost same, but maybe same or maybe not. But in Poisson distribution we are dealing in which there are number of outcomes, but their probability of happening is, or that is the probability of their success is very extremely approximately equal to 0, extremely small. This is also called डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है. बहुत ज़्यादा कम होगी मतलब रेयर जो होगा वहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टडी नाउ. बेस्ट ऑफ लक फॉर द वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कहाँ यूज़ होता है और इसको कैसे यूज़ करना है. So Poisson distribution is a discrete probability distribution, as I have discussed with you earlier. It is named after mathematician Simon D. Poisson, जिन्होंने इसको 1837 में derive किया था. It is used in the cases where probability of happening an event is very small. So that's why it is called distribution of rare events. Now probability mass function. In binomial distribution also we have discussed the probability mass function. There I have told you that probability mass function क्या होता है और उसको बाइनोमियल के केस में वो क्या है और कैसे आप उसको ड्राइव कर सकते हो. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कि किसी भी चीज़ को डिराइव करने के लिए, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, एक जरिया होना चाहिए. तो वो जरिया जिसके ज़रिए आप पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव कर सकते हो उसको बोलते हैं उसका मास फंक्शन, उसका एक फंक्शन, उसकी एक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज NCR PR QN minus R. There we have used combinations where P was probability of success and Q was probability of failure. Whereas in case of Poisson distribution we have only one parameter. In case of binomial distribution we were having two parameters. That was why that was called binomial. One was n and the another was p, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें ये दोनों पता चल जाए तो हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को आराम से डिराइव कर सकते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव जस्ट वन पैरामीटर. अगर आप इसका पॉइजन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखोगे यू विल फाइंड दैट देयर इज ओनली वन वेरिएबल. E is exponent, R is number of outcomes, number of event successes, and M is your वेरिएबल जिसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो. सो देयर इज ओनली वन वेरिएबल. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एम एम रेज टू पावर आर होल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल. आई होप यू आर ऑल आर अवेयर अबाउट द concept of factorial, where r can be ranged from 0 to n or infinity. Approximate value of e is, we rarely use it, but if we have to use it, if we are doing the numerical, then we have to use the value of e. Value of e is 2.71828. So what are the assumption of Poisson distribution? देखो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज़ जो है कुछ ना कुछ assumption पे बेस्ड होती है. तो Poisson distribution is also no exception. First is dichotomy. Dichotomy मतलब आउटकम दो ही हो सकती हैं, या तो होगा या नहीं होगा. इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रायल मतलब अगर आप
कह रहे हो, जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं रेयर इवेंट्स, जैसे मान लो रेयर इवेंट, जैसे मान लो कि कोई किताब है उसमें मिस्टेक्स निकालनी है, प्रिंटिंग बुक प्रिंट हो चुकी है उसमें मिस्टेक्स, बुक जब प्रिंट होती है तो थॉरोली चेक होती है कई लोगों के द्वारा, फिर वो उसको प्रिंट किया जाता है, तो उसमें चांसेस मिस्टेक निकलने के काफ़ी कम होते हैं, तो रेयर इवेंट्स हो गया। तो अगर आप एक पेज चेक कर चुके हो तो जो आप दूसरा पेज चेक कर रहे हो उसमें जो गलती निकलेगी उस गलती का पिछले वाले पेज से कोई रिलेशन नहीं है, यही बोलता है इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रायल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मिस्टेक निकालने की प्रोबेबिलिटी 1.5 है तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो थ्रू आउट सेम ही रहेगी। एन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स जो इवेंट्स हैं ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट इज अप्रोक्सीमेटली 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस एरो मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको हम बोलते हैं अप्रोचेस टू, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड पी अप्रोचेस टू 0। Now what are the properties of Poisson distribution? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिपैरामीट्रिक मतलब सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, अभी मैंने बताया था m, जिसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डराइव कर सकते हो। मीन इज अगेन m, वेरिएंस इज अगेन m, तो ये ऐसा पहला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा इकलौता डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होते हैं। तो बिकॉज वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम दिस CA फाउंडेशन कोर्स, सो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टैट्स के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है विच डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन has mean is equal to variance. I think not discrete probability distribution, actually whichever is, it is discrete or normal. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर मोड्स की बात करें तो बाई मॉडल भी हो सकता है, यूनी मॉडल भी हो सकता है, जैसे कि हमने उसमें भी कहा था मीन में। तो बाई मॉडल यानी कि m-1, मतलब इसके दो मोड हो सकते हैं, m-1 से m के बीच में कोई भी इसकी एक या दो वैल्यूज आ सकती हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की अगर बात करें तो वी हैव डिस्कस दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज डू चेक द वीडियो ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। e⁻m मल्टीप्लाई बाय e⁻t-1, एंड व्हाट अबाउट अरिथमेटिक मीन इज e⁻m et-1 t। नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, अगेन आई हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसके टाइम पीरियड t के साथ क्या लग जाता है i। नाउ रेकरेंस रिलेशन, नाउ व्हाट इज रेकरेंस रिलेशन? रेकरेंस रिलेशन का मतलब होता है, मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसके बारे में बताया था, कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो नहीं आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखना शुरू कर दोगे। जैसे मुझे पता है कि x यानी गलती के एक बार निकलने का चांस ये है, तो गलती के 5 बार निकलने का चांस बताओ। अब वो 5 की 5 गलतियां, आप 5 तो चलो फिर भी हो जाएगा, 100 होंगी तो उसको आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, जब मुझे कोई एक प्रोबेबिलिटी दी होगी और बाकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r+1 इज इक्वल टू m इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई r+1। जैसे लेट अस सपोज r जो है 0 है, शुरू में आपको पता है कि गलती ना निकलने के चांस कितने हैं 0.5, तो r इज +1 यानी कि एक गलती निकलने का चांस क्या होगा, दैट विल बी m, योर m कितना है मल्टीप्लाइड बाय आपकी ना निकलने का चांस कितना है डिवाइडेड बाय r+1, यानी आप कौन से इवेंट की बात जो है कर रहे हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एक वैल्यूज के बारे में पता चल जाता है, आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका सम सही है कि नहीं, तो इसके मीन, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके कर्टेसीज और इसके कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो मल्टीप्लिकेशन आएगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। प्लीज डू करेक्ट इट हियर, इट इज नॉट कर्टेसीज, इट इज कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसीज। लेट मी डू इट फॉर यू। तो मैंने इसको ठीक कर दिया है यहाँ पे। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसीज एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की अगर आप मल्टीप्लाई करो तो योर आंसर शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की बात करें, अगेन सेम पॉइंट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, याद करना इज वेरी इजी, बहुत आसान है। पेपर में आपको सिर्फ पहली 2 या तीसरी मोमेंट ही चाहिए होती है, लेकिन स्क्यूनेस और कर्टेसीज निकालने के लिए आपको थर्ड और फोर्थ भी चाहिए होती है। लेकिन वैसे अगर मोमेंट्स पूछेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 4 मोमेंट्स। जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है वो फर्स्ट मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मीन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, सेकेंड मोमेंट अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 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 योर वेरियंस। सो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन मीन तो आपका m था, फर्स्ट मोमेंट अबाउट अरिथमेटिक मीन इज 0, फर्स्ट मोमेंट अबाउट अरिथमेटिक
अर्थमेटिक मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज वेरिएंस, एंड आपकी वेरिएंस भी कितनी थी, m. सिमिलरली जब आप डिराइव करोगे, योर सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज m स्क्वायर प्लस m, थर्ड मोमेंट इज m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, एंड फोर्थ मोमेंट इज m4 प्लस 6m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस m. एंड सो द अर्थमेटिक मीन के साइड पे क्या है, μ3 इज ऑल्सो m एंड μ4 इज 3m स्क्वायर प्लस m. अब आपको स्क्यूनेस निकालना है. नाउ व्हाट इज स्क्यूनेस, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो में. प्लीज़ डू चेक, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ वहाँ पे मैंने कंसेप्ट क्लियर किए हैं उसमें और इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में. अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ डू चेक द वीडियो. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ मैसेज मी कि आपको कोई भी डाउट है. आई विल डू माई 100% बेस्ट कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना रह पाए. स्क्यूनेस की बात करें तो स्क्यूनेस होती क्या है, स्क्यूनेस का मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. इसको लिखते हैं बीटा 1 से. इसका फॉर्मूला होता है μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब. आई हैव नॉट मेंशनड इट हियर, बट श्योरली आई विल मेंशन इट इन दी वीडियो ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे मैं आपको वैसे बोल देती हूँ. यू कैन राइट नोट इट डाउन ऑन योर नोट्स और वट एवर यू आर राइटिंग ऑन वट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग इट. β1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब. आपका μ3 कितना था, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m क्यूब. 2m से 2m कट जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट विद 1m इन द डिनोमिनेटर. सो स्क्यूनेस इज इक्वल टू 1 बाय m. एंड कर्टिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्टिसिस का फॉर्मूला होता है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर, या μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर. μ2 स्क्वायर इज m स्क्वायर, ऊपर आपके पास बचा 3m स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल बी m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, नीचे बचेगा 1m. यू विल बी लेफ्ट विथ 3 प्लस 1 बाय m. अगर आपको क्लियर नहीं है, लेट मी डू दैट. मुझे लगता है ऐसा क्लियर नहीं होगा, मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए. दिस विल बी इक्वल टू let me do it here. We have to insert the symbol here. Let us take it from here. Sorry, not here, but from here. This is μ3 square divided by μ2 cube. Clear? Now what is your μ3 आपका कितना था, m का स्क्वेयर. तो what is m square is, m square is nothing but m square तो m square ही होगा, डिवाइडेड बाय m μ2 क्यूब. एंड व्हाट इज योर μ2 इज ऑल्सो m. अब 3m और ऊपर 2m कट जाएंगे, तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली m. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. मुझे कॉपी पेस्ट अभी करना पड़ रहा है यहाँ पे. तो ये दिस इज योर β1. अगर हम कर्टिसिस निकालें तो व्हाट विल बी कर्टिसिस, इट विल बी इक्वल टू μ4. लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर. पूरी वैल्यू ले लेते हैं ना हम. μ4 डिवाइडेड बाय take it here. It's not happening here.
I think I have to remove it. Then divided by mu2 square. Let us take it from here. But it is square. Clear? Now you are left with mu4 is 3m square plus m divided by m square. Got it? अब होगा क्या, इस m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कट जाएगा and you will be left with 3 और यहाँ पे क्या होगा, ये 1m है, ये 2m है, प्लस 1m डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल टू 1m, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय m. तो यही तो मैंने भी लिखा है 3 + 1 by m. नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब होता है अंडर द रूट बीटा 1. सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए था, दिस वाज 1 डिवाइडेड बाय m. कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है अंडर रूट बीटा 1. इसका बीटा रूट करोगे तो 1 का रूट इज 1 एंड m का रूट इज अंडर रूट m. एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस का फॉर्मूला होता है बीटा 2 - 3. जब आप इसमें से 3 माइनस करोगे ऑब्वियसली योर 3 विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 1 by m. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कर्टेसिस और स्क्यूनेस कैसे मैंने निकाले हैं और किस तरह से निकलते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि m है वेरिएंस और वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती क्योंकि वो स्क्वायर में होती है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. तो गामा 1 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी कि प्लस की साइड पे हमेशा इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी. अब अगर कर्टेसिस की बात करें तो कर्टेसिस पे भी क्या आ रहा है, वेरिएंस. वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये क्या होगा, हाईएस्ट वन, दैट इज लेप्टोकर्टिक. लेकिन अगर आपका m इंफिनिटी बन जाए ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इट विल बी मेसोकर्टिक. Now what is additive property? If x and y are two discrete random variables following Poisson distribution with same probability of success p, दो random variable हैं अलग अलग x और y, sorry x1 and x2 should be x1 and x2. x1 और x2 टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं अगर, तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो x1 + x2 भी एक पॉइजन वेरिएट होगा. एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है एक एग्रीगेट वेरिएबल का मोमेंट जेनेटिक फंक्शन उन दोनों वेरिएबल के अलग अलग मोमेंट जेनेटिक फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर जो है वो होता है. और अगर हम बात करें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अभी मैंने पीछे भी बताया था अगर m इन्फिनिटली लार्ज हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी कम है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कहाँ पे होता है? अभी मैंने बताया ये वहां पे यूज होता है जहाँ पे इवेंट को अकर होने की चांसेस, नंबर ऑफ इवेंट्स ज़्यादा हैं. ज़्यादा आपके पास पेजेस हैं बुक में, 365 डेज हैं एक दिन में, या 3, तो उन हर दिन में अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो तो 365 एक पेज पब्लिश हो रहा है, तो 365 पेजेस हैं एक बुक में और उसमें गलतियां निकालनी है आपने, तो उसकी जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं. तो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको प्रिंटिंग मिस्टेक्स निकालनी हो एक बुक में. एक बिजी रोड पे 1 मिनट में कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं. एक फ्यूजन प्रोसेस है. फ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है, साइंस की टर्म है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आप आपस में मिलाते हो तो एक फ्यूजन होता है, मिक्सचर जिसको आप बोल सकते हो. तो उसमें कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो फ्यूज हो रहे हैं, कितने बन रहे हैं. हेल्थ केयर सेंटर में कितनी डिमांड जो है 1 मिनट की बढ़ रही है उसकी. तो दीज आर द केसेस वेयर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू मैसेज मी, प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देके. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं बार बार कह रही हूँ, यू कैन आस्क मी. मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी डालूंगी, पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये वीडियो मैं मोस्टली सीए फाउंडेशन के लिए ही बना रही हूँ. तो इसमें जो है मोस्टली क्वेश्चंस मैंने, या मोस्टली जो मैंने डाटा दिया है वो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर दिया है. लेकिन अगर आप सीए के बच्चे होने के नाते भी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एक बार ये सारी वीडियोस को मैं शॉर्टकट में डाल दूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से डाल दूँ, तो आई विल अपलोड अ वीडियो
on each distribution, binomial, Poisson, normal, each distribution. Even I will upload the videos on rest of the topics of your syllabus as well, which we have covered earlier either in class or here. मैं उन पे भी वीडियो डाल दूंगी, डिटेल वीडियो डाल दूंगी, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओ कि वो कैसे आया है. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.